پیش خدمت ہے مشہور و معروف ہارر سٹوری ہمزاد پارٹ 3۔ حالات بدل چکے تھے۔ غارور کا سر نیچا ہو گیا تھا۔ میں نے جان ولیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اٹھو میرے بچے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور اس جملے کے ادا ہوتے ہی جیسے اس کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی، وہ خوشی سے میرے سینے کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس نے ضد کر کے مجھے اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ اب ایس پی اور کوتوال بھی اپنی کرسیاں کھسکا کر قریب آ گئے تھے۔ میں نے کل سے تم دونوں پر کھانا اور نیند بند کر دی تھی۔ میں جانتا ہوں تم دونوں کو سخت بھوک لگی ہوگی۔ بولو کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا۔ جان ولیم اور پیٹر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان کے سر شرم سے جھک گئے اور وہ کچھ نہ بولے۔ پھر آنے والے چند لمحوں میں ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کے لیے یہ منظر قطعی نیا تھا۔ میں طرح طرح کے کھانے ہمزاد سے لے کر میز پر چن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فضا میں دوستانہ ہو گئی۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے بہترین کھانا کھا رہے تھے۔ ان میں کوتوال اور ایس بی بھی شامل تھے۔ دوپہر سے کچھ پہلے میں کوتوالی سے رخصت ہوا تو اس تمام ہنگامے سے کس قدر تھکا ہوا تھا، اس لیے جو نیند اپنے گھر آتی ہے وہ کہیں اور نہیں آتی۔ میں اپنی محل نما حویلی پہنچ کر دوپہر کا کھانا کھا کر سو گیا اور مغرب کے بعد تک سوتا رہا۔ پھر نہا دھو کر اپنی فٹن پر شہر کی سیر کو نکلا اور جب واپس ہوا تو 9 بجے کا وقت تھا۔ گزشتہ رات میری آغوش کھالی رہی تھی۔ مجھے ابھی سے انگڑائیاں آ رہی تھی۔ مجھے ابھی سے کسی جسم کا انتظار تھا، کوئی حسین جسم میرے روح کی پیاس بجھا سکے۔ میرے ذہن میں اس وقت سوائے کسی حسین بدن کی خواہش کے کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے تیسے رات کے 12 بجے میں اپنے بستر پر پڑا کروٹیں بدل رہا تھا۔ 12 بجتے ہی میں نے ہمزاد کو طلب کیا اور اپنی خواہش ظاہر کر دی۔ اس نے چند ہی لمحوں میں مجھے میری خواہش پوری کرتے ہوئے کہا، یہ لیجیے آقا، اور آئندہ چند لمحوں میں اس طرح گم تھا کہ مجھے کچھ دیر اس بات کا یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی زور زور سے میرے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 4 بجے ہوں گے۔ بظاہر ہے اس وقت دروازے کے پیٹے جانے سے میرا خون کھول گیا ہوگا۔ میں نے ایک دم دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھلتے ہی میرا سارا غصہ ایک لمحے میں پانی ہو گیا اور صورتحال کی نزاکت نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ نواب کے گنڈے میرے ذہن میں نے کہا۔ 15 تندرست توانا گنڈے تھے جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں، چھڑیاں اور تلواریں تھیں۔ وہ دندناتے ہوئے کمرے میں گھس پڑے۔ ان کے چہروں پر ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے۔ ابھی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ان میں سے ایک نے اپنی لاٹھی سے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے جھکائی دی اور لاٹھی میرے کندھے سے پھسلتی ہوئی زمین پر پڑی، مگر اسی وقت دوسری لاٹھی میرے دوسرے کندھے پر پڑی اور میرے منہ سے ایک طویل چیخ نکل گئی۔ میں چیخا، ہمزاد مجھے بچاؤ، مگر ظاہر ہے میرا چیخنا چلانا بے سود تھا۔ اس وقت ہمزاد میری کسی طرح سے بھی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں ناپاک تھا۔ میرے اور ہمزاد کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں اسے ہمیشہ پاک ہونے کی صورت میں طلب کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت اتنا ہوش کسے تھا؟ مجھے تو اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ اچانک ہی ایک لمحے میں میرے ذہن میں تیزی سے یہ خیال آیا کہ اگر میں اس وقت پاک ہو جاؤں، غسل کر لوں، تو میں ہمزاد کو طلب کر سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں ایک مرتبہ بجلی کی طرح کوند کر ان کی گرفت سے نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ موت کا خوف بزدل سے بزدل اور کمزور سے کمزور آدمی کو ایک مرتبہ ضرور بہادر بنا دیتا ہے۔ شاید یہی سبب تھا کہ زخمی ہونے کے باوجود کمرے سے بھاگ کر صحن میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سامنے گھڑونچی تھی، مگر گھڑونچی پر نظر پڑتے ہی میری تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تمام گھڑے توڑے جا چکے تھے۔ اس عرصے میں میرے قاتل بھی صحن تک پہنچ چکے تھے۔ موت میرے سامنے تھی، وہ تعداد میں مجھ سے زیادہ، میں نہتا اور اکیلا۔ اسی لمحے کسی نے میرے پہلو پر اپنے خنجر سے وار کیا۔ میرے پہلو میں جیسے آگ بھر گئی ہو۔ میں درد اور تکلیف سے چیخ اٹھا۔
एक मर्तबा फिर चलाया, बचाओ बचाओ हमजाद। हमजाद उसी लम्हे मेरे नज़र सामने पड़े हुए एक टूटे हुए घड़े पर पड़ी जिसमें कुछ पानी अभी बाकी था। मैंने चीखते हुए अचानक उस टूटे घड़े का पानी अपने सर पर उंडेल लिया, जिससे सिर्फ मेरा सर और चेहरा ही बेमुश्किल भीग सका। उसी लम्हे किसी ने तलवार की एक ही ज़रब से मेरी गर्दन उड़ा दी। मेरा सर कट कर दूर जा गिरा और फिर आखिरी मंजर जो मैंने देखा वो ये था कि कई तलवारें मेरे कटे हुए तड़पते हुए जिस्म में उतर गई। उसी लम्हे मैंने महसूस किया कि मेरा कटा हुआ सर फिजाओं में बुलंद होता जा रहा है और कातिल हैरत से मेरे मुंह को बुलंद होते हुए देख रहे थे। मेरी कटी हुई गर्दन से अब तक खून बह बह कर फिजा में गिर रहा था। मैं उस वक़्त नाकाबिले बयान करबो अजियत में मुब्तला था। मैंने अपनी आंखें खोली। बदायूं की कच्ची कच्ची इमारतें मुझे बहुत नीचे नजर आ रही थी। मैं कहाँ हूँ? मैं क्या जिंदा हूँ? आखिर ये सब क्या है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरे जहन में तरह तरह के सवालात गर्दिश कर रहे थे। फिर इमारतें अपने नज़दीक आती महसूस होने लगीं। जब मेरा सर काफी नीचे गया तो मैंने आंखें खोल कर देखा। बदायूं का शहर से बाहर एक वीरान खानकाह थी। मेरा सर एक शिकस्ता दीवार पर आकर रुक गया। अब किसी कदर उजाला फैलने लगा था। मुझे उसी वक्त हमजाद का ख्याल आया और फिर दूसरे ही लम्हे वो मेरे सामने खड़ा था, परेशान परेशान, उलझा उलझा सा। वो बोला, बहुत बुरा हुआ आका, ये आपने क्या किया? क्या मैं जिंदा हूँ? मैंने बमुश्किल उससे सवाल किया। हाँ मेरे आका, आप जिंदा हैं, इसलिए कि आपकी रूह जिंदा, यानी मैं। लेकिन वो कहते कहते रुक गया। कहो कहो, इससे मत डरो कि मैं क्या सोचूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या होगा कि मुझे तुम्हारे होते हुए कत्ल कर दिया गया। लेकिन मेरे आका, आप शायद ये भूल गए कि मैं एक रूह हूँ और रूह पाक होती है। मैंने रोज़े अव्वल ही आपको इससे आगाह कर दिया था कि मैं नापाकी की हालत में आपके तलब करने के बावजूद ना आ सकूंगा। हमजाद ने बड़े दुख के साथ कहा और फिर बोला, इधर देखिए, गौर से देखिए, मैं भी लहूलुहान हूँ। अगर वो आपके पूरे पूरे तौर पर नापाकी की हालत में कत्ल कर चुके होते तो मैं भी ना होता। क्या आप नहीं देखते कि मेरे पास भी अब सिर्फ सर रह गया है? वो तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने अपने सर और चेहरे को पाक कर लिया। मैं उसी वक्त आपका सर ले उड़ा। अब मैं तमाम का तमाम सिर्फ चेहरे और सर में सिमट आया हूँ। मैं अधूरा हूँ, आप भी अधूरे हैं। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू है। आज से पहले मैंने कभी उसके चेहरे पर इतना दुख और मलाल नहीं देखा था। अब क्या होगा हमजाद? कुछ तो बताओ। क्या हम और तुम अधूरे ही रहेंगे? क्या ये नहीं हो सकता कि मेरा बकिया जिस्म मुझे मिल जाए? मैंने पूछा। बेकार है, उस जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। वो कतई नाकारा हो चुका है, मगर अब भी बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ आपकी हिम्मत का सारा दारो मदार है। मुझे बताओ, क्या हो सकता है? तुम में अब भी क्या कुव्वतें मौजूद हैं? मैंने बेसब्री से पूछा। आपको किसी नौजवान का जिस्म हासिल करना होगा जिसके साथ आपका सर लग सके। जिस दिन यह काम मुकम्मल हो गया, मेरी सारी कुव्वतें वापस आ जाएंगी। आप उसी तरह समझ लीजिए कि जिस्म मेरे लिए घर है, मैं रूह हूँ, मुझे अपना घर चाहिए। लेकिन मैं खुद इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता और आपको भी इस मामले में किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हारे ख्याल में मेरी मदद कौन कर सकता है? मैंने पूछा। आपको शायद वो पहली लड़की याद हो जिसका नाम रजिया था। मेरा इल्म मुझे बताता है कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती थी और शायद अब तक उसके सीने में आपकी मोहब्बत की चिंगारियां मौजूद हैं। वो आपके एक बच्चे की मां भी बन चुकी है। उसने शादी नहीं की। उसे आज भी यकीन है कि आप उसे कभी ना कभी ज़रूर मिलेंगे। वो आज भी आपकी मुंतज़िर है। उसके हालात जहां तक मेरे इल्म में हैं वो ये है कि जिस लड़के के साथ उसकी मंगनी हुई थी वो लड़का उससे मोहब्बत करता था और अब भी उसी तरह रजिया को चाहता है। उसने शादी भी नहीं की। उसका नाम अख्तर है। अख्तर रजिया का मामूजाद भाई भी है। बचपन ही से वो रजिया को चाहता है। रजिया भी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन आपने उस पर जाने क्या जादू कर दिया कि वो अख्तर को भुलाकर आपकी हो गई और अब तक आपकी है। अगर वो किसी तरह
آپ کی मोहब्बत से मजबूर होकर अख्तर को कत्ल कर दे तो उसका बकिया जिस्म आप अपना सकते हैं। रज़िया को इस बात पर आमादा करने की जिम्मेदारी आपकी है, ये मेरे बस में नहीं। हमजाद ने तफसील से मुझे सब कुछ बता दिया। जिंदगी की एक सूरत पैदा हो रही थी। आदमी कितना खुदगर्ज और कमीना होता है, इस बात का अंदाज़ा मेरे इस वक्त के ख्यालात से किया जा सकता है कि मैं हमजाद की ये बातें सुनकर इस बात पर आमादा हो गया कि एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार कर अपनी ज़िंदगी का सामान पैदा कर लूं। मैंने यही सब कुछ सोचकर हमजाद से एक और सवाल किया, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मैं रज़िया तक कैसे पहुंचूंगा, किस तरह? ये जिम्मेदारी मेरी है, बल्कि जब तक आप अपना जिस्म हासिल नहीं कर लेते मैं आपके साथ साथ हूँ, हमजाद ने तसल्ली देते हुए कहा। फिर कब रज़िया के घर जाने का इरादा है? आज आधी रात के करीब मैं आपके सर को वहां ले जाऊंगा, उसे शीशे में उतारने की जिम्मेदारी आपकी है, हमजाद बोला। और अपने कत्ल की दूसरी रात में मैं फिर बदायूं में दाखिल हो रहा था। जिस वक्त मेरा सर अपने हवेली के ऊपर से गुजर रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कल तक ये हवेली जिंदगी से भरपूर थी और आज इस हवेली पर वहशत बरस रही थी। हम जल्द ही रज़िया के घर तक पहुंच गए। मेरा सर इस वक्त फिजा में तैर रहा था। रज़िया हमें जल्द ही मिल गई। वो एक अलग कमरे में सोई हुई थी। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। मैं कमरे की एक खिड़की में मुअल्लक हो गया। वो महव ख्वाब थी और उसके पहलू में एक मासूम बच्चा भी सो रहा था। ये बच्चा यकीनन मेरा है, मैंने सोचा और उसे सीने से लगाए बड़ी मासूमियत से नींद की आगोश में थी। उसकी बड़ी बड़ी लंबी जुल्फें उसके चेहरे के इधर उधर बिखरी हुई थी, जैसे चांद बदलियों में वो आज भी पहली ही की तरह हसीन थी। काश जिंदगी भर मैं उसी की तरह देखता रहूं। मैं सोच रहा था, यही वो वाहद लड़की है जिसने मुझे अब तक नहीं बुलाया। रज़िया, रज़िया, मैंने उसे आवाज़ दी। चंद लम्हों बाद ही उसने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही उसकी नज़र मेरे कटे हुए सर पर पड़ी तो वो एकदम चीख मारकर बेहोश हो गई। उसकी तवील चीख से सारी हवेली गूंज उठी। मैंने देखा कि उसके चीखने से बच्चा भी जाकर रोने लगा है। हवेली में जाग गई होगी। और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें। हमजाद ने कहा, इससे पहले कोई आपको देख ले यहाँ से निकल चलिए। इसके साथ ही एक मर्तबा सर फिजा में बुलंद होने लगा और चंद ही लम्हों में हम बदायूं से बाहर निकलकर उस वीरान खानकाह में पहुंच गए। मैंने वहां पहुंचते ही हमजाद से कहा, तुम फौरन जाकर मालूम करो उसे होश आया या नहीं। मैं तो ये भूल ही गया था कि इस हालत में मुझे देखकर वो यकीनन खौफजदा हो जाएगी। तुम उसकी खैरियत की खबर लेकर आओ। हमजाद मुझसे रुखसत होकर चला गया। उधर हमजाद मुझसे रुखसत हुआ, उधर मैं अपने ख्यालों में खो गया और उस वक़्त चौंका जब मुझे अपने करीब ही एक फुंकार सुनाई दी। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखने लगा। उस वक़्त मैं खानकाह के अंदरूनी शिकस्ता कोठरी में था। जाहिर है कि मेरे हाथ पांव ना थे, बकिया जिस्म ना था जो कहीं चल फिर सकता, और इस वक्त तो हमजाद भी मेरे पास नहीं था। यही फुंकार हकीकतन किसी सांप ही की हो सकती थी। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मैंने अपने चेहरे पर कुछ लज्जाहट सी महसूस की और मैं कांप कर रह गया। सांप मेरे चेहरे पर रेंग रहा था और किसी भी लम्हे मुझे डस सकता था। मैंने सोचा था कि सांप मेरे सर से गुजरकर किसी तरफ निकल जाएगा, मगर खिलाफ तवक्का सांप मेरे चेहरे के इर्द गिर्द कुंडली मारकर बैठ गया। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वह सांप ही है। ये सूरत हाल यकीनन खतरनाक थी। मैंने दूसरे लम्हे हमजाद का तसव्वुर किया। वो फौरन हाजिर हो गया और इससे पहले कि मैं उसे सूरत हाल से आगाह करता, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे चेहरे से बल खुलते जा रहे हैं। चंद लम्हों में ही सांप की गिरफ्त से आज़ाद था। हैरत अंगेज बात यह थी कि सांप ने मुझे नहीं डसा था। ये तुम मुझे किस खतरनाक जगह ले आए हो? मैंने हमजाद से बरहम होकर कहा। अगर तुम्हें कुछ देर हो जाती तो वो यकीनन मुझे डस लेता, मगर आका, इसमें मेरा क्या कसूर है? जानवर तो हर जगह मौजूद होते हैं। वैसे अब यहाँ सिर्फ इस सांप की मादा रह गई है और कोई जानवर इसके अलावा यहाँ नहीं है। इस मादा को मारना बेहद ज़रूरी है, वरना वो सख्त इंतकाम लेगी। ये कहकर हमजाद ने उस कोठरी के कोने में एक बिल की तरफ देखा और न जाने क्या पड़ा
कि दूसरे ही लम्हे उस बिल से मुझे एक सांप का सर निकलते हुए दिखाई दिया। उसके साथ ही मैंने देखा एक सुर्ख रोशनी सी उसकी तरफ लपकी और फिर दूसरे ही लम्हे वो सांप कोठरी के फर्श पर बुरी तरह तड़प रहा था और उसके सारे जिस्म में आग लगी हुई थी। ये बहुत ज़रूरी था मेरे आका। मैं हमजाद की आवाज़ सुनकर चौंका, वरना ये मादा आपसे इंतकाम ज़रूर लेती। अब आप यहाँ पूरी तरह से महफूज हैं। मैंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, खैर ये सब कुछ जो कुछ हुआ ठीक है, मगर मैंने तुम्हें जिस गरज से भेजा था उसका क्या हुआ? रज़िया बेदस्तूर बेहोश है, मगर कुछ ऐसी ज़्यादा फिक्र की बात नहीं। रज़िया के घर के करीब हकीम सिराजुद्दीन रहते हैं। रज़िया के वालिद उन्हें बुलाने गए हैं। हमजाद ने मुझे तसल्ली दी। फिर कुछ लम्हे रुक के बोला, लेकिन इस तरह तो काम बिगड़ने का खतरा है। पहली बात तो यह है कि अगर रज़िया ने अपने घर वालों को ये बता दिया कि उसने आपका सर कटा हुआ देखा था तो ये बात खतरनाक है। दूसरी बात ये कि अगर वो दोबारा भी आपका कटा हुआ सर देखकर बेहोश हो गई तो मामला किस तरह बनेगा? तुम्हारी पहली बात का तो ये जवाब है कि अगर रज़िया ने होश में आने के बाद मेरे बारे में लोगों को बताया भी तो लोग उसे सिर्फ वहम समझेंगे। मुझे यकीन है कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। रहा तुम्हारे दूसरे सवाल, तो मैं समझता हूँ कि दो एक मर्तबा कोशिश के बाद उसके दिल से किस कदर खौफ निकल जाएगा और फिर मैं उससे अपने मकसद की बात कर सकता हूँ। मैं और हमजाद सुबह तक तरह तरह के मशवरे आपस में करते रहे और ये तय किया कि आइंदा आने वाली रज़िया के रात को रज़िया के पास सिर्फ हमजाद जाएगा, मैं नहीं। हमजाद उसे नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो सिर्फ हमजाद की आवाज़ सुन सकेगी और हमजाद अदा से बता देगा कि मुझसे डरने की कोई वजह नहीं और ये कि मैं उससे बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। दूसरी रात हमजाद को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं बेचैनी से उसका मुंतज़िर था। मुझे एक एक पल की दूबर हो रहा था। आखिर वो सुबह के करीब वापस हुआ। उसने आते ही मुझे खुशखबरी सुनाई कि उसने रज़िया को इस बात पर आमादा कर लिया है कि वो मुझसे बात करे। हमजाद ने मुझे बताया कि रज़िया को उसने बेमुश्किल इस बात पर आमादा किया है। रज़िया लातादाद सवालों का जवाब चाहती है, जिसके लिए मैंने कह दिया है कि आप खुद इन बातों का जवाब देंगे। उसने मुझे बताया कि उसने अपने होश में आने के बाद लोगों को सब कुछ बता दिया कि उसे क्या नजर आया, मगर जैसा आपने कहा था किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, जिससे वो बहुत रंजीदा हुई। हमजाद ने तमाम बातें मुझे तफसील से बता दी। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता जब मेरा कटा हुआ सर रज़िया से पहली मर्तबा हम कलाम हुआ। पहले पहल मैंने उसके चेहरे पर खौफ के आसार देखे, मगर रफ्ता रफ्ता वो मुझसे मानूस हो गई। मैं उससे कह रहा था, रज़िया तुम जानती हो कि मैं एक और ही दुनिया का फ़र्द हूँ जिसका खलक और मखलूक महफूज था, लेकिन उस बदकिस्मत लम्हे को मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं अपनी दुनिया का हिसार तोड़कर तुम्हारी दुनिया में दाखिल हुआ। उसका नतीजा आज मेरे सामने है। मैंने अपने लिए दुनिया की हसीन लड़की का इंतखाब किया और वह तुम थी। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता था और आज भी चाहता हूँ। अब से तकरीबन साल पहले जब मैं तुम्हें एक रात अपनी दुनिया में ले जाने के लिए तुम्हारी दुनिया में दाखिल हो रहा था तो तुम्हारी दुनिया की कुछ नादीदा और पुरस्कार कुव्वतों ने मुझे तुम्हारी दुनिया में दाखिल होने से रोक दिया। मुझे एतराफ़ है कि तुम्हारी दुनिया का खुदा मुझसे ज़्यादा ताकतवर और बाइख्तियार है, जिसने मुझे तुम्हारी दुनिया में दाखिल होने से रोक दिया। उसने मेरे पीछे अपनी पुरस्कार कुव्वतें लगा दी ताकि मैं फिर कभी अपनी दुनिया से निकलकर इस दुनिया में दाखिल ना हो सकूं। मैं तुमसे जुदा कर दिया गया। ये जुदाई मेरे लिए अजियतनाक थी। मैं किसी भी तरह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नतीजा ये कि मैं तुम्हारी दुनिया में दाखिल होने के लिए बराबर कोशिश करता रहा और आखिर एक दिन अपने इस इरादे में कामयाब हो गया, मगर उसकी मुझे बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ी। उस नादीदा कुव्वतों ने मुझे कत्ल कर दिया, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और किसी तरह मैंने अपना सर बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। तुम जानती हो कि मुझे मौत नहीं, मैं हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा हुआ हूँ, जिसका सबूत ये मेरा कटा हुआ सर है। मगर रज़िया, क्या क्या तुम अब भी मुझे चाहती हो उसी तरह? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरी आंखों में उस वक़्त आंसू तैर रहे थे। मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ इसका अंदाज़ा शायद
तुम ना कर सकोगे। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ, मगर ये बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे बाद मैंने भी बहुत दुख झेले हैं, इतने अजाब, इतने दुख। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे सब कुछ मालूम है रज़िया, सब कुछ। लेकिन याद रखो कि अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है, और यकीनन सच्ची है, वरना इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद हम ना मिलते, तो सुनो, हमारी मोहब्बत अजीम और लाफानी है। हमें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम मेरे पास रहोगी, मेरी अपनी दुनिया में, जहाँ सिर्फ मैं और तुम होगे। मगर मेरा बेटा भी होगा। मैं तुम्हें लाफानी कर दूंगा, मैं तुम्हें आबे हयात पिला दूंगा, और फिर तुम्हें हमेशा जिंदा रहना होगा, और मेरा बेटा भी। मैं रज़िया को पूरी तरह अपने जाल में फांस रहा था, उसे एक और ही दुनिया के ख्वाब दिखाकर अपने एतमाद में ले रहा था, और मुझे अंदाजा था कि वह मेरी बातों से मुतासर हो रही है, और वो इस वक्त कुछ सोच रही थी। कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी फैली हुई थी, और मैं फिजा में मुअल्लक उससे कुछ फासले पर मौजूद था। बच्चा सो रहा था, और रज़िया अपनी चारपाई से पांव लटकाए मुझे देख रही थी। फिर अचानक बोली, मगर ये सब किस तरह होगा? क्या वो पुरस्कार कुव्वतें जिन्होंने तुम्हें कत्ल कर दिया है, वो तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगी? तुम ठीक कहती हो। अगर मैं इसी वक्त, इसी हालत में तुम्हें ले जाना चाहूं तो ये नामुमकिन है। इसके लिए एक बड़े और मुश्किल मरहले से गुजरना जरूरी है। लेकिन रज़िया, मेरी जिंदगी, अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो, तो मैं इस इम्तिहान से बखूबी गुजर सकता हूँ। तुम्हारी दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में जाने के लिए मुझे अपनी पूरी कुव्वतें इस्तेमाल करना होंगी, और ये उस वक़्त मुमकिन होगा जब मैं मुकम्मल हो जाऊं, मैं अधूरा ना रहूं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे एक जवान जिस्म चाहिए, जिसके साथ मैं अपना सर जोड़ सकूं। इस तरह मेरी तकमील हो जाएगी, और मेरी पुरस्कार कुव्वतें भी वापस आ जाएंगी। फिर मैं बहुत आसानी से तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जा सकता हूँ, और ये काम तुम मेरे लिए करोगी। आखिरकार मैंने मतलब की बात कह दी। जिस्म कहाँ से लाऊंगी? मैं समझी नहीं। रज़िया मेरी बात सुनकर हैरत ज़दा होकर हकलाने लगी। मैं बताता हूँ तुम्हें, मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं, लेकिन इस हालत में बगैर तुम्हारी मदद के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम्हें मेरी हर बात मानना पड़ेगी, और इसमें हम दोनों की भलाई है। मैं तुमसे जो कहता हूँ उस पर अमल करती रहो, तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। मैंने देखा कि वो अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही है। मैंने फिर कहा, बोले क्या तुम इस पर आमादा हो? अगर नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मैं क्यों जिंदा रहूं? किसके लिए जिंदा रहूं? मैंने बमुश्किल अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा। हस्बे तवक्का मेरे आंसुओं का उस पर गोली की तरह असर हुआ, और वो बोली, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, चाहे मेरी जान चले जाए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी मोहब्बत तुमसे की है, उतनी किसी से भी नहीं की। उसकी आवाज़ जज्बात से कांप रही थी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरी जिंदगी। तुम्हारी मोहब्बत काबिल परस्तिश है। मैंने खुश होकर कहा। तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? रज़िया ने कहा। अब उसकी आवाज में भरपूर अज़म था, जैसे उसने दिल ही दिल में कुछ फैसला कर लिया हो। तुम्हें अख्तर को कत्ल करना होगा। मैंने अचानक वो बात कह दी जो इंतहाई खतरनाक थी। क्या वो तकरीबन चीख उठी। आहिस्ता बोलो, कोई जाग जाएगा। अपने ऊपर काबू रखो, और मेरी बात तवज्जो से सुनो। मैंने देखा रज़िया का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उससे ये काम लूँगा। वो गुमसुम बैठी मेरी बात सुनती रही, और मैं कह रहा था, मेरी पुरस्कार कुव्वतों ने मुझे बताया है कि अख्तर तुमसे अब भी मोहब्बत करता है, और इसीलिए उसने अब तक किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं की। अगर तुम अब भी उसका मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो, तो वो तुमसे करीब हो सकता है। और मैं इतना ही कह पाया था कि उसने मेरी बात काट दी। नहीं, मैं अख्तर से मोहब्बत नहीं करती। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हारी हूँ। मैं भी जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं, ये बिल्कुल सच है। तुम्हें सिर्फ वक्ती तौर पर उस झूठी मोहब्बत करनी पड़ेगी, और जब उसे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन आने लगे, तो तुम उसे तन्हाइयों में भी मिलोगी। तुम अपने घर वालों पर यही जाहिर करोगी कि तुम एक मर्तबा फिर अख्तर से करीब हो गई हो, और बहुत जल्द उससे शादी कर लोगी।
ज़ाहिर है तुम्हारे घर वालों को इस पर क्या एतराज़ हो सकता है। वो तो खुदा से चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, और फिर अख्तर तुम्हारा मंगेतर है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात। रजिया ने सिर्फ इतना ही कहा, और जब अख्तर पूरी तरह तुम पर एतमाद करने लगे, तुमसे तन्हाइयों में मिलने लगे, तो एक दिन तुम मौका पाकर उसे कत्ल कर दो। खंजर तुम्हारे लिए मैं मुहैया कर दूंगा। तुम्हें उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग करनी होगी। जैसे ही उसका सर उसके जिस्म से अलहदा होगा, मैं अपना कटा हुआ सर उसके बदन से जोड़ लूंगा, और फिर उसी वक्त हम ये दुनिया छोड़कर अपनी दुनिया में चले जाएंगे। कदम कदम पर तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए मेरी आवाज़ तुम्हारे साथ होगी, जिसे सिर्फ तुम सुन सकोगी। बोलो, क्या तुम तैयार हो? काफी पसोपेश के बाद रजिया इस खतरनाक काम पर आमादा हुई। सुबह के करीब जब मैं हमजाद के हमरा फजाओं में तैरता हुआ खानका की तरफ जा रहा था, तो बहुत खुश था। मुझे अब जिस्म मिल जाएगा, मेरी तकमील हो जाएगी, मैं फिर एक मर्तबा जिंदगी की नेमतों से माला माल हो जाऊंगा, मैं सोच रहा था। और नीचे, बहुत नीचे, शहर की इमारतें सुबह के नूर से जगमगाने लगी थीं। रजिया ने मेरी बात तो मान ली थी, मगर वो अभी तक पूरी तरह खुद को अख्तर के कत्ल पर आमादा नहीं कर पाई थी। जाहिर है कि जज्बाती फैसले ज्यादा पायदार नहीं होते। जब जज्बात का तूफान गुजर जाता है तो ये फैसले बदल भी जाते हैं। इसलिए जरूरी था कि रजिया को जहनी तौर पर उस कत्ल के लिए आमादा करने के लिए उससे मजीद मुलाकातें की जा सकती। चुनाचा मुलाकातें जारी रहीं। रजिया से मिलते हुए शायद चौथी रात थी। मुझे उससे बातें करते हुए तकरीबन पूरी रात गुजर चुकी थी, और अब सुबह के आसार नमूदार होने लगे थे। उस दौरान मैंने हमजाद ने कई मरतबा मुझसे वापसी के लिए कहा था, ताकि पूरी तरह उजाला फैलने से पहले हम अपने ठिकाने की तरफ लौट सके। मगर मैं रजिया की बातों में इस तरह गुम था कि मैंने हमजाद की तरफ ज्यादा तवज्जो ना दी। जब उजाला पूरी तरह फैल गया तो मुझे होश आया। पूरा शहर जाग चुका था। मैंने रजिया से इजाजत चाही। अभी मैं और हमजाद हवेली से कुछ दूर ही निकले होंगे कि मेरी नजरें नीचे शहर पर पड़ी। लोग सड़कों और गलियों में जमा थे और आसमान की तरफ उंगलियां उठा उठा कर कुछ इशारे कर रहे थे। मेरा माथा ठनका तो मुझे देख लिया गया। एन उसी वक्त मैंने महसूस किया कि मेरा सर बुलंद से बुलंद तर होता जा रहा है। मैं नीचे मैंने नीचे नजरें दौड़ाई तो वहां सवाए खला के कुछ नजर नहीं आया। जीता जागता शहर मेरी नजरों से उजल हो चुका था। फिर अचानक मेरे जहन को झटका सा लगा। अब मैं तेजी से नीचे आ रहा था। क्या मुझे हमजाद ने खला में छोड़ दिया? इस ख्याल के साथ ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मैं हवास ने जवाब दे दिया। दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक कदीम और शिकस्ता खानका में पाया। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया हूँ। मेरे वसवसे फजूल थे। उसी वक्त मेरे जहन में मुख्तलिफ सवालात गर्दश कर रहे थे। उस वक्त मेरे जहन में बहुत से सवालात आए। बहुत कम वक्त में मैं एक बड़े हादसे से दो चार हुआ था। इससे कबल मेरे तजर्बे में नहीं आया था कि मैंने अपने कटे हुए सर को खानका के बड़े ताक में रखा हुआ पाया। मेरा पूरा वजूद अब सिर्फ यही कटा हुआ सर था। मैंने चारों तरफ देखा। खानका दूर दूर तक वीरान थी। वही उदासी और वही वीरानी शायद इस जगह का मुकद्दर बन चुकी थी। हालांकि अब पूरी तरह दिन निकल आया था। सूरज की किरणें खानकाह की टूटी हुई छत के एक बड़े शगाफ से गुजरकर सामने नीम पुख्ता फर्श पर पड़ रही थीं। दूरों नजदीक कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हमजाद भी गायब था। मैंने भी उसके बारे में ख्याल ही किया था कि वो आ गया, और इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता वो खुद ही बोल पड़ा। आज सुबह बेहोश हो गए थे। मुझे मालूम है कि आपके लिए इतना तवील सफर खतरनाक है, मगर उस वक्त मजबूरी थी। मैं चाहता था कि आपका कटा हुआ सर जल्द से जल्द लोगों की नजरों से उजल हो जाए। मैं उस वक्त शहर से आ रहा हूँ। वहाँ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने आपका कटा हुआ सर आसमान में बुलंद होते देख लिया था। उनमें बहुत से आपको पहचानते भी हैं। आपके कत्ल के बाद जो हालात पेश आए हैं, मैंने उनके बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं। आपको कत्ल करने वाले नवाब के गुंडे ही थे, मगर जिस तरह वो रात की तारीकी में आए थे उस तरह वापस चले गए, और किसी को कानो कान ये खबर ना हो सकी
कि आपको किसने कत्ल किया है। वो पुलिस की दस्तरस से भी महफूज रहे। आपकी टुकड़े टुकड़े लाश शिनाख्त कर ली गई। आपके कत्ल के कुछ ही देर ही बाद पुलिस वहां पहुंच गई थी। अफसोसनाक बात यह है कि उस रात जो लड़की आपके पास थी वो कोतवाल की लड़की अमीना ही थी। हमजाद की बात सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। उसने मेरे चेहरे से तासरात देखकर कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये वाकया ही बुरा हुआ, लेकिन कुदरत जो करती है बेहतर करती है। एक तरह से ये बात हमारे हक में गई, इसलिए कि कोतवाल ने अपनी बदनामी के सबब तमाम वाक़े को दबा दिया और आम लोगों तक ये बात ना पहुंच पाई। लड़की ने अपने बाप को वो सब कुछ बता दिया जो आपने उससे कहा था। कोतवाल ये सब कुछ सुनकर इस हद तक पागल हुआ कि उसने अपने जिस्म को अपने पैरों से रौंदा। वो इससे ज्यादा और कर भी क्या सकता था, और गालबन इसीलिए उसने अपने कातलों की तलाश भी जरूरी ना समझी। उसने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा कि वो जब आपकी हवेली में पहुंचा तो उसे वहां सिर्फ आपकी सर कटी हुई लाश मिली। लड़की की वहां मौजूदगी को उसने पूरी रिपोर्ट से गायब कर दिया। उसने पूरी हवेली छान मारी कि आपका कटा हुआ सर उसे कहीं मिल जाए, मगर जाहिर है कैसे मिलता। नवाब के गुंडों ने भी नवाब को इस बात से आगाह नहीं किया कि उन्होंने आपका सर फिजा में बुलंद होते हुए देखा था। शायद उसकी वजह यह रही हो कि गुंडे खुद इस हैरत अंगेज वाक़े से खौफजदा हों और तशहीद ना चाहते हों। उन्होंने नवाब को सिर्फ इतना ही बताया कि वो आपको कत्ल करके फरार होने में कामयाब हो गए। आपकी सर की गुमशुदगी भी पुलिस के लिए मामा बनी हुई है, लेकिन आज सुबह के बाद फिर एक मर्तबा शहर में अस्तराब सा है और अब पुलिस भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि इन हालात के पसे पश्त यकीनन कुछ पुरस्कार वाकयात हैं जो उनके इल्म में नहीं। ये खबर रजिया तक भी पहुंच चुकी है। वो सख्त उलझन में मुब्तला है कि लोग आपके सर को शेख करामत का सर क्यों कहते हैं। उसे 100% यकीन है कि जो सर लोगों ने फिजा में देखा था वो आप ही का है। कोतवाल शहर भी परेशान और खौफजदा नजर आता है। उसने खुद भी आपके सर की एक झलक देख ली है। अब उसे इस बात का खदशा है कि कहीं आपके जिस्म की बेहुरमती का बदला उससे ना लें। वो आपकी पुरस्कार कुव्वतों से तो पहले ही मरऊब था, इन हालात में तो और भी उसके आसान खता हो गए हैं। ये बातें सुनकर मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। हालात बहुत तेजी से नए रुख इख्तियार कर रहे हैं और अब कोई भी गैर मोहतात अमल मेरे लिए तबाही का बायस बन सकता है, क्योंकि हमजाद मुझे बता ही चुका था कि अब वो भी उन हालात में मेरी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर सकेगा। मेरा वजूद एक बेजिस्म का सर, और यही तो अब मेरा सारा वजूद रह गया था, और उसके वजूद की तकमील के लिए अभी मुझे बहुत सी मंजिलों से गुजरना था। सब कुछ मेरे लिए नया नया सा था। जिन हालात में दो चार था वो कभी सोचने पर मजबूर कर देते कि सब कुछ हकीकत नहीं, सिर्फ एक बेहानक ख्वाब है। मगर जब मैं अपने कटे हुए सर को देखता तो मुझे मजबूरन उन पुरस्कार हकीकतों पर यकीन करना पड़ता। अब सबसे बड़ी फिक्र मुझे इस बात की थी कि मैं शहर किस तरह जाऊंगा। लोग मुझे देख चुके हैं। उधर रजिया से मिलते रहना भी इतना ही जरूरी था। उस पर मेरे मुस्तकबिल का दारो मदार था। अगर रजिया गड़बड़ा गई, उसका ख्याल बदल गया और उसने अख्तर को कत्ल ना किया तो क्या होगा? मुझे जिस्म कैसे मिलेगा? मैं कब तक अधूरा रहूंगा? इन तमाम वसवसों और ख्यालों ने मुझे चकरा दिया। मैं बहुत देर तक अपने ख्यालों में खोया रहा। आखिरकार मैंने एक फैसला कर ही लिया। मैंने हमजाद से कहा कि मैं आइंदा तुम्हारे साथ शहर नहीं जाऊंगा। तुम खुद रजिया से मिलोगे और उसके दिल में वो तमाम खदशात दूर करने की कोशिश करोगे जो उसे अख्तर के कत्ल रोकने की कोशिश करें। कोशिश करो कि रजिया को किसी तरह यकीन आ जाए कि लोगों ने जो सर देखा है वो हरगिज शेख करामत का नहीं है। ये इसलिए ज़रूरी है कि रजिया इन तमाम बातों को झूठ ना समझे जो मैंने उससे बेशतर उससे कर चुका हूँ, यानी ये कि मैं किसी और ही दुनिया का फ़र्द हूँ। अगर उसे यकीन हो गया कि यह सर शेख करामत का था तो शायद वो अख्तर को कत्ल करने पर आमादा ना हो। वो अख्तर के कत्ल पर सिर्फ इसीलिए तैयार हुई है कि उसे यकीन है कि मैं कत्ल के बाद उसे बाहफाजत यहाँ से निकाल कर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। और इस बात से तुम वाकिफ ही हो कि ऐसी कोई दुनिया वजूद नहीं रखती। तुम्हें हर वक्त
साए की तरह रज़िया के साथ लगा रहना होगा ताकि उसे कदम किसी भी मरहले पर डगमगा ना जाएं। आखिर वो एक लड़की ही तो है। कदम कदम पर उसे तुम्हारी रहनुमाई की ज़रूरत होगी। लेकिन एक बात से मैं डरता हूँ कि उस उजाड़ और वीरान खानकाह में भी कभी कभी किसी हादसे से दो चार हो सकता हूँ। नामालूम क्यों मुझे ये ख्याल सा है कि तुम्हारे बगैर तन्हा यहाँ नहीं रह सकता। दूसरा ये कि मैं हालात से बाखबर रहना चाहता हूँ। मैंने अगर तुम्हें जल्द जल्द तलब किया तो मुमकिन है उससे काम में बिगड़ने का खतरा हो। तुम मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी सूरत मुमकिन है कि मैं हालात से बाखबर रह सकूं? हाँ, मुमकिन है। अब भी इतना लाचार और मजबूर भी नहीं हुआ कि ये ज़रा सी मुश्किल भी ना हल कर सकूं। लेकिन यह मुमकिन नहीं कि मैं हर वक्त आपके पास मौजूद रह सकूं। हमजाद ने कुछ सोच कर जवाब दिया, ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम उस वक़्त तक रज़िया ही के पास रहो जब तक वो काम ना हो जाए जिस पर मेरी ज़िंदगी का दारो मदार है। मगर सूरत क्या होगी कि मैं यहाँ रहते हुए भी तमाम हालात से बाखबर रह सकूँ? इधर देखिए मेरी आंखों में, हमजाद बोला, और उसके बाद जैसे ही मेरी नज़रें उससे मिली मुझे महसूस हुआ एक दूधिया रोशनी हमजाद की आंखों से निकलकर मेरी आंखों में मुंतकिल हो रही है। मुझे ऐसे लगा कि बर्फ़ की दो ठंडी सलाखें मेरी आंखों में उतर गई। कुछ देर के लिए मेरी बैनाई कती जाती रही। मैंने घबरा कर जल्दी जल्दी पलकें झपकाईं। कुछ देर में मेरी हालत मामूल पर आ गई और मुझे हमजाद चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। ये क्या है? ये दूधिया रोशनी कैसी थी? मैंने हमजाद से पूछा। यही वो पुरस्कार कुव्वत है जिससे आप यहाँ रहकर भी हजारों मील दूर के वाक़यात देख सकते हैं और मैं भी वहाँ रहकर आपसे बात कर सकूँगा। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुझे ख्याल भी न था कि इन हालात में भी मुझे इतनी बड़ी और पुरस्कार कुव्वत हासिल हो सकती है। मगर ये सब कुछ होगा कैसे? मैंने हमजाद से सवाल किया। उसने बताया कि उसके लिए मुझे सिर्फ इस जगह का या इस वजूद का तसव्वुर करना होगा जिसे मैं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे जहन से एक बड़ा बोझ हल्का हो गया। कुछ देर बाद ही हमजाद मुझसे रुखसत होकर रज़िया के पास चला गया। उसके जाते ही मुझे उस पुरस्कार कुव्वत के आजमाने का ख्याल आया। मैंने हमजाद का तसव्वुर किया। मुझे अपनी आंखों के सामने बदायूं नजर आया जिसकी इमारतों के दरमियान हमजाद का सर फिजा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हमजाद जिसे देखने की सलाहियत सिर्फ मुझे हासिल थी। हमजाद फिजा में बहते बहते अचानक रुक गया और उसका चेहरा मेरे रूबरू था। हुक्म आका। कोई ख़ास बात नहीं, तुम अपना सफ़र जारी रखो। मैं सिर्फ तुम्हारी दी हुई कुव्वत आजमा रहा था। मुमकिन है कि आइंदा भी मैं किसी वक्त तुम्हें और रज़िया को देखना पसंद करूं, इसलिए तुम मुझसे उसी वक्त मुखातब होना जब मैं चाहूं। हाँ, मुझे एक बात याद आ गई। जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि रज़िया से मैं नहीं बल्कि तुम मुखातब हो। दूसरी अहम बात ये कि रज़िया तुम्हारे और मेरे दरमियान होने वाली गुफ्तगू ना सुन सके। लेकिन अगर किसी वक्त रज़िया की मौजूदगी में मुझे ये ज़रूरत ना पेश आई कि तुम्हें मुखातब करूं तो तुम मुझे किस तरह जवाब दोगे? आप कतई मुतमन रहें, रज़िया सिर्फ वही सुन सकेगी जो मैं उसे सुनाना चाहूँगा। मेरे और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू वो ना सुन सकेगी। दूसरी बात ये कि मैंने अब तक रज़िया के साथ बहुत मोहतात रवैया रखा है और उसे ये शबा होने नहीं दिया कि मैं और आप दो अलग अलग वजूद हैं। अब तुम अपना सफ़र शुरू कर सकते हो, मैंने हमजाद से कहा। उसी लम्हे वो तेज़ी से फिजा में तैरता हुआ एक तरफ निकल गया। अब मैं पूरी तरह मुतमिन था। हमजाद की दी हुई हैरत अंगेज़ कुव्वत भी आजमा चुका था। उसके बाद जो वाक़यात पेश आए वो मैं कभी ना जान सकता अगर मेरे पास अजीबो गरीब कुव्वत ना होती। मैं जब भी आंखें बंद करके किसी भी जगह का तसव्वुर करता वो जगह मेरे सामने आ जाती। फासले कम हो जाते, इतने कि मैं सब कुछ सुन सकता था, देख सकता था। और मैंने जो कुछ देखा और सुना वो इतना अजीब है कि अगर ये सब कुछ मेरे साथ ना गुजरा हुआ होता तो मैं कभी इस पर यकीन ना करता। तसव्वुर की कुव्वत ने मुझे फिर बदायूं पहुंचा दिया। रज़िया अपने घर के बावर्ची खाने में बर्तन मांजते मांजते एकदम चौंक पड़ी। तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? रज़िया हमने हमजाद से कहा। रज़िया का चेहरा एक लम्हे के लिए मतगीर हुआ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बोली,
اب तुम दिन में भी आने लगे हो, क्यों? क्या तुम्हें इस वक्त आना अच्छा नहीं लगा? हमजाद ने कहा। नहीं, ये बात नहीं। रजिया जल्दी से संभल कर बोली। तुम रात को आते थे। उसी लम्हे बावर्ची खाने के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। अरे ये तू किससे बातें कर रही हो? घंटा भर हो गया, अभी तुझसे जरा से बर्तन नहीं धुले। ये रजिया की माँ की आवाज़ थी। धो तो रही हूँ अम्मी, आखिर बर्तन भी ढेर सारे हैं, रजिया ने फौरन जवाब दिया। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि जरीना अपनी बेटी से सख्त बेजार है। मुझे उसकी आवाज़ फिर सुनाई दी। जल्दी से बर्तन धो ले। वो हरामी पिल्ला रो रो कर सारे घर को सर पर उठाए हुए मुझसे नहीं बहलता। जरीना का इशारा रजिया के बच्चे या मेरे बेटे की तरफ था। हरामी पिल्ला, मेरी अपनी औलाद, मेरा अपना खून, हरामी पिल्ला। मुझे जरीना का लहजा नागवार गुजरा, लेकिन उसमें जरीना का क्या कसूर? रजिया का गुनाह। वो जिन हालात का शिकार हो गई थी, खुद भी उससे बेखबर थी। मगर उस जमाने में किसी कमारी लड़की का माँ बनना इतना बड़ा गुनाह था जिसका तसव्वुर उसे जमाने में नहीं किया जा सकता था। रजिया भी एक मुअज़्ज़ज़ घराने की फर्द थी। यही क्या कम था कि उसके माँ बाप ने उसका गला नहीं घोंट दिया, उसके घर से नहीं निकाल दिया। शायद उसकी वजह यह हुई कि बदायूं में इस वक्त सिर्फ यही घर ऐसा नहीं था जिस पर कोई कमारी लड़की माँ बन गई हो। इसके अलावा भी कई घर थे, कई मुअज़्ज़ज़ खानदान थे जिनकी बेटियां मेरी हवस का निशाना बन चुकी थीं। लोगों को यकीन था कि इन पुरस्रार और अजीब हालात में उनकी बेटियों का कोई कसूर नहीं है, मगर ये सब कुछ जानते और समझते हुए भी अपनी तहजीब के इन रिश्तों को किस तरह झुटला देते जो उनके खून में शामिल थे। हालात कुछ भी रहे हों, लेकिन उससे बड़ा गुनाह उनकी नज़र में और कोई नहीं था। कोई कंवारी लड़की माँ बन जाए, इसलिए उन लड़कियों के वालिदैन ना चाहते हुए भी अपनी लड़कियों के साथ सख्त रवैया रखने पर मजबूर थे। उन्हीं में से एक रजिया थी जिसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। शायद उसे भी अपनी माँ का लहजा नागवार गुजरा था। जरीना वापस जा चुकी थी। बावर्ची खाने में उस वक्त हमजाद और रजिया तनहा थे। मेरे जहन में इस वक्त उस मासूम वजूद में उलझा हुआ था जिसके बाप का नाम कोई नहीं जानता था, रजिया भी नहीं। और ये बात कितनी अजीब थी कि एक माँ भी अपने बेटे के बाप से नावाकिफ थी। मैंने तो रजिया को कुछ और ही बताया था, एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी जिस पर आज की लड़कियां शायद यकीन ना करती, मगर वो रो रो थी। अब उसे 120 साल पहले का दौर, उस वक्त लड़कियां बहुत भोली हुआ करती थीं। रजिया की हालत पर रहम के सिवा कुछ नहीं आ सकता था। इस वक्त एक अजीब एहसास जागा, एक ऐसा एहसास जिसने उससे पहले कभी मेरे जहन को नहीं छुआ था। वो मेरा बच्चा, मेरा अपना खून। वो इस वक्त रजिया के बिस्तर पर पड़ा रो रहा था और जरीना पास पड़ी हुई चौकी पर बैठी छालियाँ कतरने में मसरूफ थी। काश मैं अपने बच्चे को सिर्फ एक बार गोद में उठाकर प्यार कर सकता, उसे सीने से लगा सकता। मेरी ख्यालों की रौ बहक गई और वह सारा मंजर मेरी आंखों से ओझल हो गया। मुझे उस दिन पहली मर्तबा शिद्दत से अपनी बेबसी का ख्याल आया। आखिर मैं किन अजीबो गरीब हालात से दो चार हूँ, और क्यों? मैंने तो ये नहीं सोचा था कि मैं तो बहुत नेक था। कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया था, कभी गुनाह का तसव्वुर नहीं किया था। मैंने कभी एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं की थी। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? लेकिन अब ये सारा कुछ सोचना फजूल था। वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। मैंने ये ज़िंदगी खुद मुंतखब की थी, और फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ है, मैंने जो कुछ किया है, उसमें हालात भी तो बहुत बड़ा हाथ है। उस ख्याल से मेरे जहन को कुछ सकून महसूस हुआ। मुझे खबर है कि ज़िंदगी से सभी को प्यार है। कोई भी जानते बूझते मरना पसंद नहीं करता। अगर मरते वक्त सभी आदमी को कोई इस बात का यकीन दिला दे कि वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, तो शायद वो इस धोखे में कुछ और देर जी ले। मेरी मौत और ज़िंदगी का दारोमदार एक जवान जिस्म था, ख्वाह उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। जब किसी शख्स को ये यकीन हो जाए कि वो मौत से बच सकता है, कोई ऐसी राह मौजूद है, तो वो यकीनन ऐसी राह का इंतखाब करेगा। हमजाद मुझे बता चुका था कि बगैर जिस्म हासिल किए मेरा वजूद ऐसी राह का इंतखाब नहीं कर सकता, बल्कि इस बेकैफ और बेरंग जिंदगी से की हासिल
ये तो मौत से भी बदतर है। ये खुदगर्ज ज़रूर है कि आदमी खुद जिंदा रहने के लिए दूसरे को मौत के घाट उतार दे, मगर यकीन करो कि आदमी ज़्यादा खुदगर्ज और कमीना है। और मुझे ये एतराफ़ करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के लिए वही सब कुछ किया जो एक इंतहाई खुदगर्ज और कमीना शख्स कर सकता है। एक बेकसूर नौजवान के कत्ल पर एक मासूम लड़की को उकसाना जुर्म नहीं तो और क्या है। मैं मुजरम हूँ, मैं गुनहगार हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरी सच्ची और कड़वी बातें सुनकर तुम्हारे चेहरे पर नफरत के आसार दिखाई देने लगे हैं। हाँ, मैं इसी काबिल हूँ कि मुझसे नफरत की जाए, नफरत जो मुझे दुनिया ने दी, नफरत जो मैंने दुनिया से वापस कर दी। अब मरते वक्त मैं खुश हूँ कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं। मैं अपनी सारी मोहब्बतें और नफरतें सिर्फ कर चुका हूँ। मेरे पास ही अपनी सरगुज़श्त सुनाने के लिए भी वक्त बहुत कम है। मौत मेरी तरफ तेजी से बढ़ रही है। मैं उसके कदमों की धमक सुन रहा हूँ। इससे पहले कि वो मुझसे मिले, मैं चाहता हूँ कि अपनी तमाम सरगुज़श्त तमाम लोगों को सुना दूँ। तो सुनो कि ये आवाज़ तो फिर कभी ना सुन सकोगे। वो तमाम दिन उस अज़तराब और उस बेकली में गुजरा। गुनाह सवाब की कशमकश ने मेरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। तसव्वुर की बेपनाह पुरस्रार कुव्वत ने मुझे फिर हकीकत की दुनिया में धकेल दिया। मैं देख रहा था जिसकी सिर्फ आवाज़ ही सुन सकती थी। रात हो चुकी थी और वह रज़िया अपने कमरे में दूध पिलाते पिलाते बच्चे को थपक थपक कर सुलाने की कोशिश कर रही थी। कमरे में लालटेन की मदम रोशनी फैली हुई थी। रज़िया की मां जरीना अपने कमरे में सोने के लिए जा चुकी थी। हवेली में दूर तक सन्नाटा फैल गया था। तुमने देखी जिंदगी मेरी, मैं कितने अजाबों में सफ़र कर रही हूँ, रज़िया ने कहा। हाँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तुम बहुत सब्र करने वाली लड़की हो। तुमने वाकई गैर मामूली बर्दाश्त का सबूत दिया है और मैं जानता हूँ कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने तुम्हें इस जहन्नम में धकेला है, मगर यकीन करो रज़िया, मैं ही तुम्हें इस जहन्नम से निकालूंगा। हमजाद उससे कह रहा था कि तुम बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए इन अजाबों से छूट जाओगी। बस ज़रा सब्र और हिम्मत की बात है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने मेरी मोहब्बत पर सब कुछ कुर्बान कर दिया है, लेकिन तुम्हें ये कुर्बानी महंगी नहीं पड़ेगी। अचानक रज़िया को कुछ ख्याल आया और उसने हमजाद की बात काट कर पूछा। सुबह अबू जान कह रहे थे कि शेख करामत का सर लोगों ने आसमान पर उड़ता हुआ देखा है। मैं ये बात तुमसे पूछना भूल ही गई थी कि ये क्या मामला है। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस वक्त तो तुम्हें मेरे पास से गए थे। शायद तुम्हारे इल्म में हो कि शेख करामत का कत्ल कितने पुरस्कार तरीके से किया गया था। उसके बारे में सुना होगा। उसका सर भी ना जाने किस तरह लाश से गायब हो गया था। पुलिस को तलाश करने के बावजूद उसका सर ना मिल सका और ना ही कातिलों का कुछ सुराग मिला। ये तमाम बातें मुझे अपनी पुरस्कार कुव्वतों से मालूम हुई हैं। मैं तुमसे खुद इस मसले पर बात करने वाला था। दरअसल लोग अभी तक इस खौफनाक वाक़े को नहीं भूले हैं। आज सुबह जो सर लोगों ने फिजाओं में उड़ते देखा, वो खुद मेरा सर था, जिस पर उन्हें शेख करामत का धोखा हुआ। इसलिए उसके जिस्म से भी सर गायब हो गया था, जैसा कि मैं तुम्हें भी बता चुका हूँ। इसलिए अब मैं दुनिया की नज़रों से उज्जल होकर अपना सर छुपा लिया है। अब कोई मेरा कटा हुआ सर नहीं देख सकेगा, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। और मेरी आवाज़ भी सिर्फ तुम ही सुन सकोगी और कोई नहीं। ये सारे इंतजामात मैंने तुम्हारे और अपनी हिफाजत के लिए किए हैं। तुम खुद सोचो कि तुम्हारी दुनिया के एक फ़ानी शख्स का सर किस तरह फ़िज़ा में उड़ सकता है, और वो भी इस वक्त जबकि उसे मरे हुए अरसा गुजर चुका है। हमजाद ने रज़िया को समझाया। रज़िया के चेहरे पर हमजाद की बातें सुनकर किस कदर इत्मीनान नजर आया और वो बोली, तुम ठीक कहते हो। लोगों को यकीनन तुम्हारे सर पर शेख करामत का धोखा हुआ होगा। उस रात देर तक हमजाद रज़िया को हमवार करता रहा। मैंने जब देखा कि रज़िया अब सोने की तैयारी कर रही है तो हमजाद को मुखातब किया। मैंने तुम्हारी और रज़िया की सारी गुफ्तगू सुन ली है। अब मुझे इत्मीनान है, लेकिन असल मसला अब भी बदस्तूर बाकी है। वो क्या? हमजाद ने पूछा। वो ये कि रज़िया और अख्तर को किस तरह करीब किया जाए। जब तक ये दोनों करीब नहीं आएंगे हमारा मकसद हल नहीं होगा।
یہ مسئلہ بہرحال ہے، اس لیے میری معلومات کے مطابق اختر کے والدہ نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ رضیہ کے گھر نہیں جائے گا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب رضیہ نے اپنے باپ کے بچے کو جنم دیا تھا۔ دونوں خاندان میں اس مسئلے پر کشیدگی ہے، یہاں تک کہ رضیہ کی ماں زرینہ کا آنا جانا بھی اپنے بھائی کے یہاں ختم ہو گیا ہے، اور یہ رشتہ بچپن سے طے تھا، مگر درمیان میں یہ تمام ہنگامہ ہونے کے سبب سارا معاملہ بگڑ گیا۔ خیر، کوئی ترکیب تو سوچنی ہی پڑے گی۔ حمزاد کے چہرے پر مجھے فکر کے آثار نظر آئے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کسی طرح رضیہ ہی کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ کوئی راستہ نکالے؟ جب وہ اختر کے قتل پر آمادہ ہو گئی ہے تو یقیناً اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہوگی کہ وہ اختر سے مل سکے۔ میں نے کہا، ان حالات میں تو یہی ممکن ہے کہ ہمیں بہرحال رضیہ پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا، ورنہ اور کوئی تدبیر فی الحال سمجھ میں نہیں آتی۔ اس وقت تو رضیہ تقریباً سو چکی ہے۔ میں صبح اس مسئلے پر تفصیلی بات کروں گا۔ بہرحال آپ مطمئن رہیں، میں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ پیدا کر ہی لوں گا۔ حمزاد نے مجھے یقین دلایا۔ دوسرے دن حمزاد نے رضیہ سے اس مسئلے پر بات کی۔ رضیہ نے کہا، میرا دل تو اس بات پر آمادہ نہیں کہ میں اختر سے ایک مرتبہ پھر عہد و پیمان کروں، مگر تمہاری محبت نے مجھے ہر طرح مجبور کر دیا ہے۔ میں آج ہی کوشش کروں گی کہ اس سے مل سکوں، مگر یہ کیسے ممکن ہے رضیہ؟ میرے علم میں تو یہ ہے کہ تم لوگوں کا وہاں آنا جانا بھی بند ہے۔ حمزاد بولا، میں نے اسے ضرور بھلا دیا ہے، مگر وہ مجھے نہیں بھولا۔ رضیہ کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ میں اس کا دکھ محسوس کر کے کانپ گیا کہ رضیہ کے پاؤں ڈگمگا جائیں گے۔ کیا اس کے دل میں اب بھی اختر کی محبت زندہ ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو بہت غلط ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ رضیہ کو مجھ سے محبت ہے یا اختر سے؟ جس بات کو میں نے محسوس کیا، تقریباً وہی بات حمزاد نے محسوس کی۔ حمزاد نے رضیہ سے کہا، رضیہ، مجھے تمہارے لیے دکھ نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں تمہارا یہ جملہ سن کر اتنی دیر خاموش رہا کہ تمہارے دل میں ابھی بھی اختر کی محبت کی کوئی چنگاری روشن ہے۔ یہ میں طنز نہیں کر رہا۔ میرا اس سے یہ مطلب ہے کہ میں تمہاری راہ میں دیوار بننا چاہتا ہوں، بلکہ میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت صبر آزما تھا، اس لیے رضیہ کے جواب پر میری آئندہ زندگی کا انحصار تھا۔ میں دم سادے سب کچھ دیکھتا رہا اور سنتا رہا، چند کہ میں اس وقت رضیہ اور حمزاد سے میلوں دور ایک اجاڑ خانقاہ میں تھا، مگر میرے سامنے سب کچھ اس طرح تھا جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ اس زمانے میں فلم کا تصور بھی نہیں تھا، مگر آج کے زمانے میں یہ سمجھنا کچھ ایسا دشوار نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ لوگ فلم کے کرداروں سے بات نہیں کر سکتے، اور میں حمزاد سے بات بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بات میں نے تمہیں اتنی تفصیل سے اس لیے سمجھائی ہے کہ تم میری سرگزشت سن کر الجھن کا شکار نہ ہو جاؤ، اور یوں سمجھ لو کہ میں رضیہ اور حمزاد کے پاس ایک طرح سے موجود بھی تھا اور نہیں بھی تھا۔ موجود اس طرح کہ جب میں چاہتا حمزاد سے ہم کلام ہو سکتا تھا، اور غائب اس طرح کہ مادی طور پر میں اس سے میلوں دور تھا، لیکن اتنے فاصلے کے باوجود بھی اس کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ اس دن بھی جب حمزاد نے رضیہ سے وہ سوال کیا جس نے مجھے بے چین کر دیا، میں نے حمزاد کے اتنا ہی قریب تھا جتنا تم مجھ سے۔ اس لیے جب حمزاد کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں تو وہ کچھ اور فکر مند ہو گیا۔ اسے احساس تھا کہ اس وقت مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ رضیہ حمزاد کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، تم نے غلط سمجھا، لیکن مجھے اس کا کوئی ملال نہیں، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ مرد کی فطرت میں شک کرنا شامل ہے۔ میرا مطلب اس جملے کا کچھ اور تھا۔ میں تمہیں کچھ اور بات بتانے والی تھی جسے تم نے سننے سے پہلے ہی مجھ پر شک ظاہر کر دیا۔ نہیں، یہ بات ہرگز نہیں، حمزاد نے جلدی سے کہا، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا۔ اداسی تو میرا مقدر بن چکی ہے، اور میں تمہارا مقدر بدل دینا چاہتا ہوں۔ کون جانے کیا ہو، بہرحال جو بھی ہو، لیکن ایک بات میں تمہیں ضرور بتا دینا چاہتی ہوں۔ عورت ایک مرتبہ خود کو کسی کی باہوں کے سپرد کر دیتی ہے تو پھر وہ نہیں بدلتی،
औरत की सबसे बड़ी दौलत उसकी असमत है, असमत जिसे मैं तुम्हारे सुपुर्द कर चुकी हूँ। अब मैं किसी और की नहीं हो सकती, चाहूं भी तो नहीं। काश तुमने मेरे अंदर झांकने की कोशिश की होती, फिर मुमकिन था कि तुम मुझसे ये सवाल ना करते। रजिया, अगर मेरी बात से तुम्हारे दिल को दुख पहुंचा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा है, मुझे तुम पर एतमाद है, और इसी एतमाद और भरोसे पर मैंने तुमसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी है। तलखियों को भूल जाओ और बस इतना याद रखो कि बहुत जल्द हम एक नई दुनिया के सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। वो दुनिया हमारी अपनी होगी, मोहब्बत की दुनिया, मसरतों और हसीन ख्वाबों की दुनिया, जहां मौत नहीं, जिंदगी ही जिंदगी है। मैंने देखा कि हमजाद की बातें रजिया के दिल पर असर कर रही हैं। उसकी आंखों में चमक लौट आई है जो अभी कुछ देर पहले गायब हो गई थी। वो बोली, कितने हसीन हैं ये ख्वाब। ये ख्वाब हकीकत भी बन सकते हैं, बशर्ते कि तुम हिम्मत से काम लो। हमजाद ने मतलब की बात पर आते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे वादा कर चुकी हूँ और तुम देखोगे तुम्हारी रजिया तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। रजिया ने कहा, फिर कुछ लम्हे खामोश रहकर बोली, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अख्तर को ज़रूर भुला दिया है, मगर वो मुझे नहीं भूला। इसका वो सबूत तुम्हें भी बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम हवेली के पिछवाड़े में हमारा बाग तो देख ही चुके होगे। हाँ, मैंने देखा है, हमजाद ने जवाब दिया। बहुत खूबसूरत है ये बाग, बराबर वाली हवेली तक फैला हुआ है। तुम जानते हो बराबर वाली हवेली में कौन रहता है? ये तो मैं भूल ही गया था। तुम ठीक सोच रही हो। हमजाद ने रजिया की हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन अभी तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। हमारे मामू बराबर वाली हवेली में रहते हैं। हमारे घर आने जाने के लिए मामू ने अख्तर पर पाबंदी आयद कर दी है। इस बात को तकरीबन 2 महीने हुए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में शायद कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि अख्तर ने मुझे और मैंने अख्तर को ना देखा हो। वो रोज शाम को बाग में आ जाता है और घंटों इस बात का मुंतजिर रहता है कि मैं उसे खिड़की में कब नजर आऊंगी। उस बात से सिर्फ मैं ही वाकिफ हूँ कि वो टिकट की बांधे खिड़की की तरफ देखता रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं उसे देखकर खिड़की बंद कर देती हूँ। वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब पहली मर्तबा मैंने ऐसा किया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि फासले के बावजूद मैंने उसके रुखसारों पर आंसू बहते हुए देखे थे, लेकिन मैं उसे भूल जाना चाहती थी और मैंने भुला दिया है। मगर वो अब भी हर शाम उसी तरह पाबंदी से बाग में आता है। कभी कभी तो ये भी होता है कि मैं जानते बूझते खिड़की की तरफ जाने से गुरेज करती हूँ। रजिया की बातें सुनकर एक लम्हे के लिए मेरे अंदर छुपा हुआ इंसान जाग उठा। ये तुम क्या कर रहे हो? एक मासूम और बेगुनाह मोहब्बत का गला घोंटने चले हो। तुम्हें दुख नहीं होता, लेकिन मैंने अपने अंदर छुपे हुए उस इंसान को, आवाज़ को ये कहकर दबा दिया कि मुझे ज़िंदगी चाहिए। जिस तरह दूसरों को जीने का हक है, मुझे भी है। और मेरे अंदर का इंसान खामोश हो गया। उसी शाम मैंने देखा रजिया अपनी हवेली की खिड़की में खड़ी हुई अख्तर को कुछ इशारा कर रही थी। ये लड़की कौन है? ये रजिया तो नहीं हो सकती। मैं सोच रहा था कि इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है। ये क्या मोहब्बत में इतना बड़ा धोखा भी दिया जा सकता है? ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ फरेब है। औरत का ये रूप मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे उस वक़्त रजिया बिल्कुल बदली हुई नजर आई। ये सब कुछ जानते हुए भी कि वो सब कुछ मेरे एमा पर कर रही है, मेरी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अख्तर को फ़रेब दे रही है। मुझे रज़िया का अमल नामालूम क्यों अच्छा नहीं लगा। न जाने इस वक़्त वह चेहरे से वो भूलपन और वो मासूमियत कहाँ गायब हो गई थी जिस पर मैं जान छिड़कता था। मुझे रज़िया फ़रेबी और अय्यार लड़की नज़र आ रही थी, मेरी ही तरह खुद गर्ज और काबिल नफ़रत। 2 दिन भी ना गुजरे थे कि रजिया की हवेली का बाग अख्तर की गर्म सांसों से महकने लगा। रजिया अब अपनी हवेली के पिछले दरवाजे से रात गए निकलती और अख्तर की बाहों में सिमट जाती। कितना करीब था उन जुमलों में, कितना जहर छुपा हुआ था उन लफ्ज़ों में जो सरगोशियाँ बनकर हवा की दोष पर बिखर जाते थे। अख्तर, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। भूल जाओ जो कुछ हुआ, सब कुछ भूल जाओ। मैं भी भूल जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आगोश में आकर खुद भी भूल जाना चाहती हूँ। तुम तो जानते ही हो जो कुछ हुआ उसमें मैं बेकसूर हूँ। मैं खतागर हूँ तो सिर्फ ये
کہ میں ज़िंदगी से मायूस हो गई थी। मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझती थी, मगर इस अरसे में मैंने तुम्हारे इश्क की सदाकत को परख लिया है। तुम सच्चे हो, तुम्हारा इश्क सच्चा है। अब हमने एक दूसरे को समझ लिया है, हमने एक दूसरे को पा लिया है। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। बोलो अख्तर, क्या सारी दुनिया की तरह तुम भी मुझे ठुकरा दोगे? अपनी आने वाली मौत से बेखबर मासूम अख्तर उन जहर भरे हुए जुमलों का जवाब कांपती हुई आवाज़ में देता, तुम जैसी हो, जो कुछ हो मेरी हो, हमेशा से और हमेशा के लिए हो। अहदो पैमान के ये सिलसिले तवील से तवील होते जा रहे थे, और जब रात अपना सफ़र ख़त्म करने लगती तो वो दोनों किसी ताज़ा मोहब्बत की खुशबू से सरशार एक दूसरे से जुदा हो जाते। कभी कभी तो मुझे शक गुजरता कि ये रज़िया वाकई अख्तर के करीब की गर्मी से पिघल गई है, इसलिए मुझे झूठे और सच्चे लहजों की उस वक़्त तमीज़ नहीं थी जितनी अब है। एक ही हफ्ते में रज़िया ने अख्तर को पूरी तरह अपने जाल में फांस लिया था। इस दौरान रज़िया की मां ज़रीना को भी रज़िया पर कुछ शक होने लगा, और जब एक रात उसने अपने शक को यकीन में बदल लिया तो उसकी बजाय वो रज़िया पर बरम होती, उसके चेहरे पर एक तरह का सकून और अत्मीनान सा नजर आने लगा। आखिर एक दिन उसने दबे लफ्ज़ों में रज़िया से पूछ ही लिया, क्यों री, अगर मैं बड़े भैया से तेरे लिए बात करूं तो अब तुझे कोई एतराज़ तो ना होगा? रज़िया ने खामोशी से सर झुका लिया। उसके बाद कुछ और आगे बढ़ी। ज़रीना ने अपने शोहर मिर्ज़ा कदीर बेग से बात की और ढके छुपे लफ्ज़ों में यह भी बता दिया कि लड़का और लड़की दोनों राज़ी हैं। अब मसला सिर्फ अख्तर के बाप जमशेद अली का था, और वो इस रिश्ते पर आमादा होते हैं या नहीं। इस खदशे का इजहार कदीर बेग ने अपनी बेगम से भी किया। जरीना ने जवाब दिया, अख्तर मेरी मांग है, बचपन से ये रिश्ता तय था, बड़े भैया मना किसी तरह कर सकते हैं। वो तो रज़िया की वजह से मैं चुप रही, क्योंकि वो पहले तो शादी के नाम से ही बुदकती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अच्छा है घर की इज्जत घर में रह जाए, और फिर कोई हमारी रज़िया ही के साथ ये वाक़या नहीं हुआ, दूसरे घरों की बेटियों की इज्जत भी कौन सी महफूज रह गई है? उसमें बेचारी लड़कियों का क्या कसूर है? कतीर बेग ने असबात में सर हिलाया और कुछ सोचने लगे। अब अपना ये सोचना छोड़ो, मैं तो जाके अपने भैया से बात कर लेती हूँ। आखिर तुम्हारे भी बड़े हैं, तुम भी उनसे माफ़ी मांग लोगे तो कौन सा इज्जत चली जाएगी? सारी ज़िंदगी का मामला है, कब तक लड़की को घर में बिठाए रहेंगे? फिर कोई दूसरा लड़का मिलना भी मुश्किल है। आखिर कौन कबूल करेगा ऐसी लड़की को जिसके एक बच्चा भी हो? तुम ठीक कहती हो, मैं भाई साहब से माफ़ी मांग लूँगा। हालांकि पहल उन्होंने की तरफ से हुई थी, उन्होंने ही हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था और अख्तर पर भी पाबंदी लगा दी थी। तुम ये तो सोचते हो, मगर ये नहीं सोचते इस ज़माने में हालत क्या थी। तमाम में थू थू हो रही थी। रज़िया का लड़का हुआ था, आखिर उनकी भी तो बदनामी थी, है कि नहीं? जरीना ने कहा, हाँ ये बात तो है। अब मामला खासा पक चुका था। हमजाद की भी यही राय थी कि जल्द से जल्द वो सब कुछ हो जाना चाहिए जिसके लिए ये सब बखेड़ा किया गया था, क्योंकि अख्तर और रज़िया की शादी से ना तो मुझे दिलचस्पी थी और ना खुद रज़िया को। हमारा मकसद तो अख्तर को एतमाद में लेना था, और मकसद बड़ी हद तक पूरा हो चुका था। इससे पहले कि रज़िया के वालिदैन बात आगे बढ़ाएं और वह दोबारा तमाम मामला तय पा जाएं, हमजाद ने मुझे अपना काम कर गुजरना था। शादी होना तो खैर दूसरी बात है, मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि रज़िया की शादी की बात भी तय हो, इसलिए इस सूरत में रज़िया और अख्तर का मिलना बंद हो जाता। हमजाद भी नई से नई सोचता था। जिस ज़माने में रज़िया और अख्तर से मुलाकातें जारी थी, उसने रज़िया या मीर के बेटे के लिए वो इलाज तजवीज़ कर दिया था कि सारी रात बड़े सुकून से गुजर जाती और वो एक मरतबा भी ना उठता, रात भर अफ्यून के नशे में पड़ा रहता। ये तरकीब उसने इसलिए निकाली थी कि रज़िया सुकून के साथ अक्सर को वक़्त देख सके। आज भी उसने रज़िया को अफ्यून की गोली देते हुए कहा, लो ये नन्हे को खिला दो, अख्तर के आने का वक़्त हो रहा है। रज़िया ने बच्ची को गोद में उठाया और कड़वी गोली उसके मुंह में रख दी। उसे दूध पिलाने बैठ गई ताकि उसे तलखी कुछ कम महसूस हो। बच्चा कुछ देर में सो गया। आज रात अख्तर के पास जाने से पहले हमजाद ने रज़िया से कहा, मेरा ख्याल है कि अब वो वक़्त करीब आ गया है जब तुम्हें अपनी मोहब्बत और हमें दोनों का सबूत देना है।
मैं समझी नहीं। रज़िया ने आवाज़ की सिमत देखा। मैं तुमसे ये बात नहीं छुपाना चाहता कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी शादी के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसके बाद हमजाद ने ज़रीना और कदीर बेग के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से उसे आगाह कर दिया। ये बात किसी हद तक मेरे इल्म में भी थी, इसलिए मैंने उसे ढके छुपे लफ्ज़ों में मेरी रजामंदी चाही थी, मगर मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। और जवाब भी क्या देती। रज़िया बोली, तुमने जो जवाब ना देकर अच्छा ही किया। तुम्हारा इकरार या इनकार दोनों ही मुसीबत होते। अभी तो बात गोल मोल है, मगर मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हारी अम्मी अभी इस बात से आगाह हो चुकी हैं कि तुम अख्तर से मिलती हो, और वो एक रात तुम्हें अख्तर को बाग में छुप कर देख चुकी थी। हमजाद ने रज़िया को सब कुछ साफ साफ बता दिया। क्या? रज़िया उछल पड़ी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताने से फ़ायदा भी क्या था? वो इस बात से खुश हैं कि वो उनके सर से एक बोझ उतर जाएगा, और तुम वैसे भी अख्तर से मंसूब थी। आखिर इसमें हर्ज ही क्या था? शायद यही सब कुछ सोचकर उन्होंने तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया कि तुम्हें और अख्तर को ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने का मौका दिया जाए। लेकिन अब रज़िया कुछ कहते कहते रुक गई, क्योंकि इस वक्त खिड़की के पास एक साया सा लहराया था। वो आ गया। रज़िया ने सरगोशी की और जल्दी से उठकर दबे पांव कमरे से निकल गई। रज़िया आखिर अब क्या चाहती है? अब अगर देर हुई तो मामला बिगड़ने का खतरा है। मैंने हमजाद को मुखातब किया। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। आज उससे यही बात करने वाला था। आज दिन ही में ज़रीना अपने भाई जमशेद अली से मिलकर आई है। ज़रीना की मिन्नत समाजत पर वो कुछ नीम राजी हो गए हैं, इसलिए बेहतर सूरत यही है कि वो एक दिन में ही रज़िया के हाथों अख्तर का कत्ल हो जाए, वरना ये रातें फिर कभी लौट कर नहीं आएंगी। अभी मेरे लिए और बहुत से मसले हैं जिनसे कबल अज वक़्त मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। वो क्या? मैंने दरियाफ़त किया। अख्तर के कत्ल के बाद भी मामला फ़ौरन ही नहीं निमट जाएगा। हमजाद ने कुछ सोचते हुए कहा। यानी मैं समझा नहीं। आपके सर के साथ उसका जिस्म जोड़ने के बाद आपको पूरी तरह हवास में आने के लिए कम अज़ कम 21 दिन लगेंगे, और ये 21 दिन आपके लिए और ख़ुद मेरे लिए भी बड़े सब्र आजमा और अजाबनाक होंगे। आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। इन 21 दिनों में मैं भी पूरी तरह मुअत्तल होकर रह जाऊंगा। मुझे आपकी और अपनी तकमील के लिए ये दिन दुनिया की नज़रों से पूरी तरह छुप कर गुजारने होंगे। साथ साथ अपनी हिफाजत का भी पहले ही से इंतज़ाम करना पड़ेगा, ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हमजाद की बात सुनकर मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। आखिर ये 21 दिन किस तरह गुजरेंगे? मैंने उससे पूछा। क्या तुम्हारी कुव्वतें सलब हो जाएंगी? तकरीबन, हमजाद ने कहा। मेरे लिए ज़रूरी होगा कि नए जिस्म से रबत पैदा करूं, और उसमें बेइंतहा तकलीफ़ का सामना मुझे भी करना होगा और आपको भी। हम दोनों में से कोई भी कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहेगा। क्या मुझसे ये कुव्वत भी छीन ली जाएगी जो मुझे इस वक्त हासिल है? मेरी मुराद तसव्वुर की कुव्वत से है। मैंने घबरा कर हमजा से पूछा। नहीं, सिर्फ यही कुव्वत मुझ में और आप में बरकरार रह जाएगी। बाकी तमाम कुव्वतें इस 21 दिन के अरसे में मफलूज हो जाएंगी। हमजाद ने जवाब दिया। तुमने मुझे बताया था कि अख्तर के कत्ल होते ही तुम उसके जिस्म के साथ मेरा सर जोड़ दोगे, लेकिन अगर अख्तर को हवेली के बाग में कत्ल किया गया तो हर हाल में 21 दिन वहीं गुजारने होंगे, और ये मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक होगा। वहाँ तो हम हर तरह गैर महफूज होंगे। होगा ये कि मैं अख्तर के जिस्म के साथ आपका सर जुड़ते ही आपको फ़ौरन खानकाह में पनाह ले लूँगा, और फिर 21 दिन तक हम इस खानकाह में रहेंगे, हमजाद ने बताया। रज़िया क्या क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे इम्तहान में, मगर नामालूम क्यों कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि कहीं रज़िया हमारे साथ धोखा ही ना कर रही हो। तुमने कभी अख्तर और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी है? मैंने हमजाद से पूछा। कई बार सुनी है, मगर जहाँ तक मेरा इल्म मुझे बताता है वो आपके साथ मुखलस है, और ये सब कुछ वो आप ही के लिए कर रही है, वरना ये भी मुमकिन था कि अख्तर के कत्ल पर ही आमादा ना होती। हमजाद ने कहा।
تمہارے علم پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن میں خود بھی یہ نہیں سمجھ سکتا میرے ذہن میں ایسے خیالات کیوں آتے ہیں۔ جب میں اسے اختر کے ساتھ دیکھتا ہوں تو وہ مجھے بدلی بدلی سی لگتی ہے، جیسے وہ رضیہ نہ ہو، کوئی اور ہی لڑکی ہو۔ پھر یہ لڑکی جو ایک مرد سے بے وفائی کر سکتی ہے، اس سے کوئی جھوٹی محبت جتا سکتی ہے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ کس طرح وفادار ہو سکتی ہے؟ آپ کا یہ سب کچھ کہنا بجا صحیح، مگر آپ ہی نے اسے مجبور کیا ہے اور آپ ہی کے بچے کی ماں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اسے ناپسند کرتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اس بات پر مجبور تو بہرحال نہیں ہیں کہ آپ بھی اس کے وفادار ہیں۔ آپ ایک خاص مقصد کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ مقصد پورا ہو جانے کے بعد آپ کی مرضی کے مختار ہیں۔ رضیہ کا چکر میرے ساتھ کچھ عجیب ہے، کبھی مجھے اس پر رحم آتا ہے، کبھی سخت نفرت محسوس ہوتی ہے، اور اس کا کردار میرے لیے ایک معمہ بن گیا ہے۔ تم خود سن لو وہ اس وقت اختر سے کیا باتیں کر رہی ہے، کتنا عجیب ہے یہ سب کل، جسے وہ موت کے گھاٹ اتارنے والی ہے۔ آج اس کے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے۔ حمزہ سے یہ کہہ کر میں نے رضیہ کی حویلی کے باغ کا تصور کیا، اور بہت جلد ایک کنج میں وہ دونوں مجھے مل گئے۔ رضیہ اختر کے زانوں پر سر رکھے نرم زمین پر لیٹی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں گلاب کا پھول تھا، جسے کبھی کبھی وہ شوخی سے اختر کے گالوں پر مارتی۔ وہ اس وقت اختر سے کہہ رہی تھی، ہماری تمہاری محبتوں کا رازدار یہ گلاب ہیں، یہ گھنے پیڑوں کے سائے ہیں، یہ کنج، یہ حسین راتیں۔ اختر نے رضیہ کی بات کٹ کر کہا، اور میرے دوست، میرا خوار عابد ہے۔ رضیہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ عابد کون ہے؟ عابد کو بھول گئی؟ ہاں، تمہیں بھول ہی جانا چاہیے تھا، تم تو مجھے بھول گئی تھیں، اختر نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ یہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہی ہو؟ اب اتنے دنوں کی بات مجھے کیا یاد رہ جاتی؟ عابد وہی تو ہے نہ، دبلا پتلا سا تمہارا دوست، جسے دیکھ کر مجھے اکثر ہنسی روکنا دوبر ہو جاتی تھی اور تم ناراض ہو جاتے تھے۔ وہ تو بہت پہلے کسی اور شہر چلا گیا تھا۔ ہاں، وہی آج رات ہی آیا ہے، میرے پاس ٹھہرا ہے۔ اب وہ پتلا دبلا نہیں رہا، اس کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ اختر نے کہا، کل رات اسی کے مشورے پر عمل کر کے میں نے ہمت کی اور امی جان سے صاف صاف سب کچھ کہہ دیا کہ مجھے دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں، جو چاہے کہیں، میں اگر شادی کروں گا تو رضیہ سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly